Okay, so children, the recording has started, and today we are going to study fractional distillation. In the previous class, we studied simple distillation. Can you tell me the principle of simple distillation technique of separation of components from mixture? Anyone? Difference in boiling Difference point. in boiling point. What should be difference in boiling point for using simple distillation technique? 25 or more than that. It should be greater than 25 degrees Celsius or 25 Kelvin. So children, next technique for separating components of mixture is fractional distillation. Fractional distillation is the process of separating two or more liquids by distillation and collection of fractions boiling at different temperatures. ये just एक introduction हो गया कि fractional distillation is the process of separating two or more liquids which are completely miscible into each other. Miscible means completely soluble into each other, and the difference in boiling point is less than 25 degrees Celsius. What is the principle of fractional distillation? Fractional distillation technique is based upon the principle that two miscible liquids having difference in their boiling points less than 25 degrees Celsius or 25 Kelvin can be separated by using fractional distillation. Here I have a question. Is the difference in boiling point 25 degrees Celsius, or it should be difference in boiling point 25 Kelvin? क्या दोनों एक हैं? Difference 25 degree Celsius or difference 25 Kelvin? Will both be same? Yes, sir. Yes, क्योंकि इसलिए बेटा ये टेम्परेचर नहीं है, दिस इज डिफरेंस. और डिफरेंस जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस. ऐसे 100 केल्विन और 75 केल्विन, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 25 केल्विन. तो यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, इसलिए इट इज पॉसिबल दैट वी कैन राइट 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन. Example, water and alcohol which are miscible into each other completely, and the difference in their boiling point is less than 25 degrees Celsius. So we cannot separate them by using simple distillation technique. Hence, we need to separate them by using fractional distillation method. Question here is, how can you separate alcohol from water present in a mixture? How to write the answer? Set up apparatus for fractional distillation of alcohol and water as shown in the figure. अब देखिए इधर फिगर में, ये आपके पास फिगर है. इस फिगर में क्या है? देयर इज एन आयरन स्टैंड जिसमें ये क्लैंप है टू होल्ड दिस सेटअप. देयर इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, केप्ट ओवर अ ट्राइपॉड स्टैंड, एंड बिलो द ट्राइपॉड स्टैंड देयर इज ए बंसन बर्नर और स्पिरिट लैम्प. ठीक है, ऊपर हमने क्या लिखा? राउंड बॉटम फ्लास्क विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्टिलेशन फ्लास्क. और इसका जो माउथ है, माउथ इज क्लोज विथ ए कॉर्क स्टॉपर in which there is a hole. In this hole, a glass tube is fitted with, inside which glass bead is filled. Glass bead means very very small particles of glass are filled inside it. ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का ग्लास के इसके अंदर भरे रहते हैं. फिर इसमें ऊपर जाएंगे, देखिए देयर इज आउटलेट डिलीवरी ट्यूब. डिलीवरी ट्यूब इज फिटेड इनसाइड ए वाटर कंडेंसर and the distillate is collected in another conical flask or in another jar. ठीक है, अब देखिए हम कैसे इसको परफॉर्म करते हैं. So set up apparatus for fractional distillation of alcohol and water as shown in the figure. When the temperature at the top of fractionating column reaches 78 degrees Celsius, then the vapors of alcohol distill over first and is collected as distillate. अच्छा, डिस्टिल होने का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टिल का मतलब होता है कि गेट इवेपोरेटेड एंड देन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो पहले अल्कोहल के वेपर 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे? दे विल इवेपोरेट. ऊपर देखिए इधर थर्मोमीटर लगा है ना, इस थर्मोमीटर से हम क्या करेंगे? क्लोज वॉच रखेंगे. जब हीट करेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना करे. ठीक है, तो जब हम हीट करना चालू करेंगे टेम्परेचर राइज होगा,
उससे जो अल्कोहल है, जो लो बॉइलिंग है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग। और उससे क्या होगा, वेपर्स ऑफ अल्कोहल विल स्टार्ट राइजिंग अप। ये ग्लास बीड से पास करेंगे, ऊपर जाएंगे। टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर विल बी 78 डिग्री सेल्सियस। फिर ये वेपर्स पास होंगे किससे, डिलीवरी ट्यूब से और वाटर कंडेंसर से। जब ये वाटर कंडेंसर के अंदर से पास होंगे, दे विल गेट कूल्ड एंड अगेन लिक्विफाइड। ठीक है, व्हेन दे गेट लिक्विफाइड दे विल ट्रिकल डाउन इनटू दिस अनदर रिजर्वायर। ठीक है, अब देखिए, जब इस समय अल्कोहल राइज कर रहा होगा 78 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर भी थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन में इवेपोरेट होगा। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इवेपोरेशन होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी। इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो जाएंगे, क्योंकि उनको बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिला है, इसलिए वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ग्लास बीड से टकराएंगे और यहीं पे फिर से लिक्विफाई होकर वो नीचे चले आएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से यहीं से लिक्विफाई होकर नीचे गिरते जाएंगे, जबकि अल्कोहल के पार्टिकल्स ऊपर जाते रहेंगे। देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। अब पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में अल्कोहल्स पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, डिस्टिल होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पूरा अल्कोहल निकल गया, तब फिर टेम्परेचर 78 से ऊपर बढ़ना चालू होगा। ठीक, when the temperature at the top of fractionating column reaches 100 degree Celsius, then the vapors of water also formed and they get distilled. ठीक है, अगर टेम्परेचर जब तक 78 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा टेम्परेचर, तब तक सिर्फ किसका डिस्टिलेशन होगा, अल्कोहल का। जब फिर अल्कोहल पूरा निकल गया, फिर वाटर का डिस्टिलेशन चालू होगा, तो फिर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे और वाटर को अलग कलेक्ट कर लेंगे। इन दिस वे टू कंटेंट्स, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर गेट सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। देन अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का और कहाँ पे यूज करते हैं? सर क्रूड ऑयल में Yes. उसके कंपोनेंट सेपरेट करने में। yes, wonderful, great. ठीक है, so technique of fractional distillation is also used for separating different components of crude oil. Crude oil means कच्चा तेल, पेट्रोलियम ऑयल। और पेट्रोलियम ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या क्या रिमूव करते हैं, उसमें से नेचुरल गैस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, गैसोलीन यानी पेट्रोल, पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन, पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, केरोसिन निकाल लेते हैं, एस्फाल्ट निकाल लेते हैं, वैक्स निकाल लेते हैं, कोल तार निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट जितने भी क्रूड ऑयल में प्रेजेंट हैं, सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से हम क्रूड ऑयल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? Yes. Yes, sir. All right. Next question is, how can we obtain different gases from air? हमने आपको पहले भी बताया था कि air is a homogeneous mixture of several gases. ठीक है, air भी क्या है, air is a solution. Solution of what? Solution of several gases mixed into it homogeneously. मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में यूनिफॉर्मली सेवरल गैसेस इसमें क्या होती हैं, मिक्स्ड होती है एयर में। अब देखिए, एयर से डिफरेंट गैसेस को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये फ्लो चार्ट दिया है, ये एपरेटस सेटअप दिया हुआ है। तो फ्लो चार्ट के हिसाब से देखिए, सबसे पहले क्या करें, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सबसे पहले एयर को एक कंटेनर में भरेंगे और उसको कंप्रेसर यूज करके हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर कम करेंगे बाय यूजिंग कूलिंग गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं जो कूलिंग में यूज होती हैं? अमोनिया गैस यूज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज होती है। सबसे बेस्ट कूलिंग एजेंट कौन सी है? अमोनिया गैस है बच्चों। तो जो ये लोहे के या स्टील के कंटेनर में जिसमें गैस को रखा जाएगा, उसके ऊपर से क्या पास करते हैं? अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस उस कंटेनर को कूल करती है, जिससे अंदर की एयर कूल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एयर है उसको एक स्टील कंटेनर में भरते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, मतलब हाई प्रेशर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसको कूल करते हैं टेम्परेचर लो करके। इसकी वजह से क्या होगा, एयर विल गेट लिक्विफाइड, एयर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी।
then liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column. इस लिक्विड एयर को अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो चैम्बर बनेगा, जो एपरेटस सेटअप होगा, उसमें पास करते हैं लिक्विड एयर को। अब उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो डिफरेंट कंपोनेंट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड दे विल गेट डिस्टिल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. So gases get separated at different heights at different fractionating columns maintained at different temperatures. अब देखिए कैसे ये गैसेस है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, नाइट्रोजन है, ये तीन मेन गैसेस है. बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन का कितना है, -183 डिग्री सेल्सियस. एट -183 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन बॉइल्स. एट -186 डिग्री सेल्सियस ऑर्गन, ठीक है, boils. Nitrogen boils at -196 डिग्री सेल्सियस. अब परसेंटेज एयर बाय वॉल्यूम, एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, 20.9%, ऑर्गन 0.9%, नाइट्रोजन 78.1%. अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, जब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में इसको पास करेंगे लिक्विड एयर को, तो सबसे पहले कौन सी गैस डिस्टिल होगी, ऑक्सीजन की, आर्गन की, नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गुड, बहुत होशियार है मेरी क्लास. सो नाइट्रोजन गैस दिख ही रहा है आपको टेबल में, नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -196, मतलब सबसे कम है. नेगेटिव टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है. तो -196 मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन पहले बॉयल होगी और फिर डिस्टिल होके अलग होगी, फिर उसके बाद आर्गन होगी, सबसे बाद में कौन सी होगी, ऑक्सीजन. इन तीनों, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे ज्यादा है. अच्छा चलिए, अब इसमें एपरेटस सेटअप जो इसका इंडस्ट्रियल सेटअप है उसमें देखते हैं कैसे करते हैं. ठीक, सो 1 मिनट प्लीज. ये सेटअप है, देखिए यहाँ से हमने जो एयर है, ठीक है, एयर को पहले फिल्टर किया, ये फिल्टर लगा होता है, उससे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब निकल जाएंगे, एयर यहाँ से पास होगी और ये एयर चली गई किसमें, कंप्रेसर वाले कंटेनर में. इसमें देखिए 2 पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन जितना क्लोज आएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा. पिस्टन को हम यस बोलो बेटा. पिस्टन एक्चुअली क्या होता है, एक मेटल की प्लेट होती है, जैसे अपना सिरिंज होता है ना इंजेक्शन लगाने वाला, ठीक है, तो जब उस सिरिंज को, उसको जो अंदर पुश करने वाला जो उसका पॉइंट होता है, जब उसको हम बाहर खींच लेते हैं तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, जब उसको थंब से नीचे दबाते हैं डॉक्टर तो लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर होता है. वैसे ही एक ये प्लेट होती है, जब इस प्लेट को आप बाहर से अंदर की ओर पुश करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर की ओर खींच लोगे तो अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा. आगे मेरी समझ में, ये सिरिंज जैसा ही होता है, ठीक है. तो ये जो ये सर्कल्स बने हुए हैं, ये प्लेट जो लगी हुई है, ये प्लेट एकदम स्क्रीन इसके वॉल से चिपकी हुई होती है ताकि एयर इधर उधर एस्केप ना कर पाए. जैसे ये अंदर की ओर होंगी, पुश होंगी, तो अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है. इस प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन उनका बढ़ जाएगा, टकराएंगे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, तो उससे एयर कैसी हो जाएगी, हॉट हो जाएगी. इस हॉट एयर को फिर हम दूसरे टैंक में पास करते हैं, ये टैंक है, और इसमें देखिए क्या लगा हुआ है, एक ये स्पाइरल शेप में एक स्टील की पाइप लगी हुई है. इस पाइप में हम क्या करते हैं, नीचे से कोल्ड वाटर डालते हैं, तो ये कोल्ड वाटर भरता जाएगा और ऊपर से हॉट वाटर बाहर निकलेगा. एक्चुअली दिस इज वाटर कंडेंसर, ठीक है. ये कंडेंसर में क्या होगा, जैसे बाहर से हॉट एयर आ रही है, लेकिन ये पाइप कैसा है, ठंडा है. सो ठंडे पाइप से टकरा के जो हॉट एयर थी, वो हॉट एयर क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी, मतलब एयर कूल्ड हो जाएगी. और जब कूल एंड फ्रीजिड हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी. ये लिक्विड एयर इसके अंदर फिल होती रहेगी. इस लिक्विड एयर को फिर ये देखिए कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है, वो एयर फिर ले जाएंगे एक दूसरे चैम्बर में. इस चैम्बर में एक सेपरेटर रखा हुआ है, ठीक है, एक फिल्टर पेपर जैसा लगा रहता है. तो इसमें फिल्टर में क्या होगा कि जो गैसियस स्टेट में है वो गैस तो इससे पास हो जाएगी, जो लिक्विड हो गया वो लिक्विड बाहर निकल जाएगा, ऊपर सरफेस से लिक्विड बाहर निकल जाएगा, जो गैस रहेगी वो पास हो जाएगी थोड़ी बहुत. तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे पहले लिक्विफाइड हो गई, उसका बॉइलिंग पॉइंट
सब इससे भी कम था, ठीक है, ऑक्सीजन से भी, उससे नाइट्रोजन से भी। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे पहले कूल एंड कंप्रेस होने के बाद ड्राई आइस बन के सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। फिर उसके बाद चलते हैं, फिल्टर होकर नाइट्रोजन गैस नीचे गई यहाँ से। अब वो है लिक्विफाइड है लेकिन मॉलिक्यूलर साइज भी छोटी है। इससे अब नाइट्रोजन गैस गई दूसरे चैम्बर में गई, ये देखिए यहाँ से, यहाँ लिक्विड एयर फील्ड है, ये यहाँ पे इस चैम्बर में लिक्विड एयर रहेगी। इसके बाद जाने के बाद वो अलाउ किया जाएगा उसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा इसका। जब वॉल्यूम बढ़ता है, अब नाइट्रोजन गैस एंड ऑर्गन गैस, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस लिक्विफाई होगी, बाहर निकलेगी, फिर ऑर्गन गैस लिक्विफाई होगी, बाहर निकलेगी। एक्चुअली क्या है, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लेवल्स मेंटेन्ड है। सो पहले ऑर्गन गैस नाइट्रोजन निकल जाएगी, फिर ऑर्गन, सबसे लास्ट में जो लिक्विड बचेगा उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, सबसे ज्यादा था, इसलिए सबसे बाद में आपको लिक्विड ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इस लिक्विड ऑक्सीजन गैस को अगर आप इवेपोरेट करोगे तो ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, अदरवाइज कंप्रेस्ड और लिक्विड स्टेट में ही रहेगी। So in this way, children, we can separate oxygen, nitrogen, argon and carbon dioxide from air. आई बात समझ में मेरी? Yes. सबको आ गई? Yes, sir. यस सर। ओके, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? ये डायग्राम आप बना लेंगे कॉपी में, ठीक है? एंड द लास्ट हेडिंग, लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बी प्यूरिफाई वाटर? हम वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? तो वाटर प्यूरिफाई करना तो आप सबको आता है, आप लोग मॉडल बनाते रहते हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। ये मान लीजिए हमारा रिजर्वायर है वाटर का, ठीक है, ब्लू कलर से जो दिख रहा है आपको, ये डैम है मान लो या कोई दूसरा वाटर रिजर्वायर जिसमें आपने वाटर रखा है, गंदा पानी रखा है, ठीक है। रिजर्वायर से पाइप से पहले वाटर जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में, पहला टैंक है ये सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में जब इस डर्टी वाटर को हम फिल करेंगे क्या होगा, जो हैवी सेडिमेंट्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और वाटर जो होगा और लाइटर पार्टिकल्स जो होंगे, जो वाटर में डिजोल्व होंगे, वो ऊपर रहेंगे सरफेस में। सेडिमेंटेशन से हैवियर पार्टिकल नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। अब वाटर कंटेनिंग लाइटर इम्प्योरिटीज विल पास टू अनदर टैंक, ठीक है, दूसरी टैंक होगी जिसमें हमने क्या किया है, इसको लोडिंग टैंक बोलते हैं। पहले को सेडिमेंटेशन टैंक, दूसरे को लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में हम क्या करते हैं, एलम, फिटकरी वगैरह डाल देते हैं। तो लोडिंग से क्या होता है, जब से आपने एलम डाला तो जो धागे में बांध के एलम लटका दिया, एलम क्या होता है, उसमें चार्ज होता है, जो स्मॉलर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अपोजिट चार्ज के, उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एलम, जिसकी वजह से एलम के ऊपर ढेर सारी इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो जाएंगी। जो बहुत छोटी छोटी चार्ज पार्टिकल्स की इम्प्योरिटीज थी, वो सब एलम के ऊपर डिपॉजिट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से और छोटे पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी के रूप में थे, वो भी एलम के साथ चिपक जाएंगे, और वाटर हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी विल बी ऑन द टॉप। फिर यहाँ ऊपर से वाटर निकलेगा, फिर इसको हम फिल्ट्रेशन टैंक में डालेंगे, ठीक है। पहला टैंक क्या था, सेडिमेंटेशन, दूसरा लोडिंग, और तीसरा फिल्ट्रेशन टैंक। अब फिल्ट्रेशन टैंक का स्ट्रक्चर देखो, नीचे क्या है, बड़े बड़े कंकड़ हैं, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ हैं, फिर उसके ऊपर सैंड है, ठीक है। तो आप देखिए अलग अलग टेक्सचर के अलग अलग पार्टिकल साइज की लेयर बनाई गई है। नीचे बड़े बड़े कंकड़ जैसे पत्थर हैं, फिर उसके ऊपर और छोटे छोटे कंकड़ हैं, फिर और छोटे, फिर सैंड, इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स बनाई गई हैं। ऊपर ये सैंड है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप वाटर डालोगे तो वाटर पास होता है, ठीक है, इन डिफरेंट लेयर से, ठीक है, पहले हैवियर पार्टिकल से, फिर उससे छोटे से, फिर उससे छोटे से, इस तरीके से वाटर कैसा होते जाएगा बेटा, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सब इन्हीं के इंटर पार्टिकल स्पेसेस में फंस जाएंगे और सिर्फ वाटर उसमें से बाहर निकलेगा। तो वाटर का लेवल ये देखिए, पहला टैंक में एक ऐसा हो गया, पहले चैम्बर में ऐसे डाल दिया लार्ज साइज, दूसरा इसी का पार्टीशन होगा, उसमें स्मॉल, फिर उससे भी स्मॉल, और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसमें कुछ नहीं होगा, तो उसमें वाटर भरेगा। फिर उससे वाटर दूसरे टैंक में जाएगा, क्लोरीनेशन टैंक में। इस क्लोरीनेशन टैंक में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं,
या ब्लीचिंग पाउडर रखते हैं। तो क्लोरीनेशन टैंक में जैसे क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में वाटर आएगा, जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्लोरीन गैस यूज टू किल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो क्लोरीन गैस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को किल कर देगी। उसके बाद जो वाटर निकलेगा दैट विल बी ड्रिंकेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर। इन दिस वे वी कैन प्योरीफाई वाटर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो। गुड। सो हाँ बेटा बोलो। सर इसमें आपने बोला कि क्लोरीन गैस ऐड करेंगे, क्लोरीन हाँ, की टैबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं ना? क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन की टैबलेट्स। हाँ क्लोरीन टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं। अब क्लोरीन के पाइप आते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर के, व्हाइट कलर की रॉड्स होती हैं, उसके अंदर वो रॉड्स लगी रहती हैं अंदर। ठीक है, मोटी मोटी सी रॉड होती हैं क्लोरीन की, जो सबसे पहले पुराने स्टील वाले फिल्टर्स आते थे घरों में, किसी के अगर हो तो आप देखना सब व्हाइट कलर के मोटे मोटे से रॉड लगे रहते हैं। वो रॉड एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर के रहते हैं। तो वाटर उसी में जैसे जाता है तो उसमें से क्लोरीन निकलती है और वो क्लोरीन जम्स को, बैक्टीरिया को मार देती है। ठीक है, क्लोरीन की टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं जिससे क्लोरीन प्रोड्यूस होता हो। वो यस सर। क्लोरीन क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। तो इससे बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर जो पानी निकलेगा वो ड्रिंकेबल। लेकिन उसको तुरंत नहीं पीना चाहिए। उस पानी को मटके में या किसी जार में आप भर लो। क्या होगा कि जब उसमें थोड़ा बहुत क्लोरीन गैस भी रह सकती है, और क्लोरीन गैस अगर आपके आंख वगैरह में जाएगी तो नुकसान करेगी। तो ओपन पॉट्स में, बर्तन वगैरह में बड़े बड़े में भर लिया और उसको रख देते हैं ऐसे। तो क्या होगा, उससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस, चूंकि वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, इसलिए धीरे धीरे वो उससे निकल जाती है। आप उसको मटके में भर लिया या बड़े बड़े बाउल्स में भर लिया, उसको ओपन रख दिया, तो 1-2 घंटे बाद क्लोरीन गैस एस्केप आउट हो जाएगी। उसके बाद वो पानी आपके लिए फिट, परफेक्ट फिट होगा पानी ड्रिंकिंग के लिए। क्लियर? यस सर। ओके। और एक टेक्निक ये है, हाउ कैन यू प्यूरिफाई इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में अभी आपको नहीं पढ़ाया ना। क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, इम्प्योर क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। उन इम्प्योर क्रिस्टल से प्योर क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन में हम देखिए क्या करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का करना है तो हम पहले एक बीकर लेंगे और इनसाइड बीकर वी फिल वाटर। ठीक, और वाटर में जो भी क्रिस्टल्स को जिसको प्योरीफाई करना है उसको डाल के उसको डिसॉल्व कर देंगे बाय शेकिंग विथ और स्टिरिंग विथ ग्लास रॉड। ठीक, अच्छी से इसको डिसॉल्व कर लेंगे। डिसॉल्व करने के बाद फिर हम उस बीकर को बर्नर पे चढ़ा देते हैं। ऐसे नीचे बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गॉस है, बीकर है, और उसके ऊपर अच्छा कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट हीट नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, चाइना डिश में हीट करते हैं। ठीक है, चाइना डिश में सॉल्यूशन को ले लिया हमने, इसलिए कि वो बीकर डायरेक्ट, चाइना डिश कई बार डायरेक्ट रखेंगे तो टूट भी जाएगी। तो बीकर में भी ले सकते हैं सॉल्यूशन को, चाइना डिश में भी ले सकते हैं। अब आप इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। गर्म करेंगे तो वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर का प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन विल बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, उसको कैसे टेस्ट करते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेट हुआ कि नहीं हुआ, तो जब इसको गर्म करें उसी समय उसमें एक ग्लास रॉड डालते हैं। ग्लास रॉड को बाहर निकालेंगे और उसको में एयर ब्लॉक करेंगे अपने माउथ से। एयर ब्लॉक करने के बाद अगर छोटे छोटे से पाउडर ग्लास रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते हुए आपको दिखाई दे, ग्लास रॉड के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि सैचुरेशन स्टेट हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर क्या करते हैं बच्चों, जब सैचुरेशन स्टेट आ गई तो इस बीकर को और चाइना डिश को निकाल लेंगे या बर्नर को सिंपली बंद कर देंगे। बर्नर को बंद करके रात भर रख देंगे, पूरी रात, ओवरनाइट। सो दूसरे दिन जब आप नेक्स्ट डे जाओगे लैब में तो आप क्या देखोगे कि लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फेट एक एग्जांपल है, कोई भी ले सकते हैं, फेरस सल्फेट ले लिया, थायोरिया ले लिया,
ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड ले लिया कॉपर। तो इस तरीके से हम, पहले ये इम्प्योर सैंपल था, इसमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट था, उसका सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा करने के कैसे रखा, सिर्फ बर्नर रखना है, उसको आइस वगैरह के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि जितनी जल्दी वो ठंडा होगा उतना ही बेकार बहुत छोटे क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर जितना आप स्लोली वो ठंडा होगा सॉल्यूशन, क्रिस्टल्स उतने ही बड़े साइज के बनेंगे। इसलिए चुपचाप उसको बीकर को उतार के ऐसे ही रख देते हैं, रात भर रखा रहेगा, सवेरे आपको प्योर क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, बड़े बड़े से उसके बने हुए। फिर इस क्रिस्टल्स को हम फिल्टर आउट कर लेंगे, फिल्टर पेपर में क्रिस्टल मिलेगा आपको, और जो लिक्विड है वो लिक्विड अलग सेपरेट हो जाएगा। जो लिक्विड सेपरेट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मदर लीकर। मदर लीकर, LIQUOR, मदर लीकर बोलते हैं उसको, और क्रिस्टल सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्योर क्रिस्टल से प्योर क्रिस्टल्स हमको मिल जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एंड थैंक यू एंड साईराम, दिस चैप्टर इज ओवर। सो चिल्ड्रन, समझ में आया क्रिस्टलाइजेशन? Yes, sir. Yes, sir. All right, now it's your time to fire questions as many as you want. सर तो मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ, आपको जितने क्वेश्चन पूछना हो मुझसे पूछो। यस। सर डिफरेंट फेजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Different phases of colloidal solutions are यस सर। solid, liquid and gases. मतलब colloidal solutions can be solid, colloidal solutions can be liquid, colloidal solutions can be gaseous also. ठीक है, एक टेबल भी मैंने आपको बनवाया था जिसमें क्या क्या थे, सोल्स थे, जेल्स थे, इमल्शंस थे। ठीक है, वो टेबल याद है आर्ची? यस सर। हाँ, तो what are different phases of colloidal solution? Colloidal solutions can exist in different phases like solids, liquids and gases. ठीक है, solid solutions, solid colloidal solutions are called solid sols. ठीक है, एयर इन सॉलिड वाले को एरोसोल्स बोलते हैं, सॉलिड इन एयर वाले को एरोसोल्स बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इमल्शंस, और सॉलिड इन लिक्विड आर कॉल्ड जेल। तो वो सब जो टेबल में था वही है इसका आंसर। नेक्स्ट। सर क्रोमेटोग्राफी एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्रोमेटोग्राफी एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, फाइन। मैं प्रेजेंट करता हूँ दोबारा। ये है बेटा क्रोमेटोग्राफी। अब आप देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। इंक जो है, इंक में जरूरी नहीं, जैसे हमने ब्लैक इंक लिया या रेड इंक लिया, तो ये जरूरी नहीं कि उसमें एक ही कंपोनेंट हो, उसमें एक से अधिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और उन सभी कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसको क्रोमेटोग्राफी से यूज करेंगे। क्रोमेटोग्राफी करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक फिल्टर पेपर जैसे एक इस पेपर आता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर। ठीक है, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर की एक रेक्टेंगुलर शीट या स्ट्रिप काट लेते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इसकी काट लिया हमने, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर की, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर के आसपास। फिर एक एंड पे उसके, चाहे इस लोअर एंड चाहे अपर एंड, एक पेंसिल से क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचते वक्त ध्यान रखेंगे कि एकदम किनारे नहीं होने चाहिए, यहाँ से एंड से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए ये लाइन। ठीक है सृष्टि, अब इस लाइन में फिर हम क्या करेंगे कि सेंटर पे एक स्पॉट इंकर रख लेंगे, जिसका भी हमको सेपरेट करना है उसका एक ड्रॉप रखेंगे और उसको सुखा लेंगे फिल्टर पेपर को। जब क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर को हमने इंक डाल के स्पॉट बना के उसको सुखा लिया, देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफ। ठीक है, अब इसको पूरा जब ड्राई हो गया ये, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ। इसमें देखिए स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल है, और उसमें स्पॉट ऑफ इंक रख लिया बीच में। फिर अब एक हम जार रखेंगे, बड़ा सा ग्लास जार विच इज कॉल्ड गैस जार, और उसमें हमने डाल दिया सॉल्वेंट लाइक वाटर, थोड़ा सा नीचे रख लिया, पूरा नहीं भरेंगे, नीचे थोड़ा सा इसमें वाटर भर लिया,
और इस क्रोमेटोग्राफ को इसके अंदर सस्पेंड करेंगे, झुलाएंगे। इस तरीके से झुलाएंगे कि जो इसका एंड है वो एंड वाटर को टच करे, बस वाटर में बहुत अंदर तक डीप ना रहे, थोड़ा सा वाटर में टच करे। जैसे वाटर में टच करेगा तो वाटर विल स्टार्ट राइजिंग अप। वाटर इसमें से धीरे धीरे सोक करेगा वाटर इसको फिल्टर पेपर, और वाटर विल राइज अप, ऊपर जाएगा वाटर। जब वाटर ऊपर जाएगा बाय कैपिलरी एक्शन, it will take the particles of this spot of ink. The component of ink which is more soluble in water will get dissolved fast. ठीक है, इस इंक का वह कंपोनेंट जो सबसे पहले डिसॉल्व होगा, that will dissolve faster in water and will rise with faster speed. वो जल्दी से ऊपर उठना चालू होगा। जो कम सोल्यूबल कंपोनेंट होगा वो बाद में डिसॉल्व होगा और बाद में ट्रेवल करना चालू करेगा ऊपर वाटर के साथ। इस तरीके से जो मोर सोल्यूबल कंपोनेंट है दैट विल राइज अप मोर अप, एंड लेस सोल्यूबल कंपोनेंट विल राइज लेसर हाइट्स, एंड इन दिस वे बोथ द कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, इस तरीके से दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे। जो ज़्यादा सोल्यूबल कंपोनेंट है वो ऊपर जाके कलेक्ट होगा, जो लेस सोल्यूबल कंपोनेंट है वो नीचे ही रह जाएगा। In this way, different components get separated by using chromatography. Srishti, understood? Srishti? Yes, sir. All right. Next, children. Any more doubt if you have, you can ask. Sir, हाँ Kinjal. sir, when we separate components of air, then after compressing and cooling the air, what will happen? Then what's the After cooling and compressing, we have to pass it, and then we have to pass it into fractional distillation chamber. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में जैसे आपने नीचे भरा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा, तो गैसेस विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। गैसेस फिर से अपना गैसेस लिक्विड से गैस में आने लग जाएंगी। कौन पहले गैस स्टेट में आएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में गैस स्टेट में आएगा। तो सबसे कम किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड पहले इवेपोरेट होगी और फिर कंप्रेसर से जाके डिस्टिल होकर बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑर्गन है, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन विल गेट सेपरेटेड एट द लास्ट बिकॉज इट हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। किंजल, Yes. आ गया समझ में? Yes, sir. ऑल राइट। Sir, concentration of solution. Concentration of solution means the amount of solute present in solution. Greater the amount of solute present in the solution, greater will be the concentration of solution. ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास जब ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूट का मास कम होगा तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कम होगा। ग्रेटर द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सृष्टि? Yes, sir. Okay. So children, your time is now over. So if no more doubt, then we'll bind up, or if you have further more doubts, you can ask question.